اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر صدق اللہ العظیم۔ ترتیب مصحف پر سورۃ الزمر کے بعد سورۃ المومن واقع ہوئی ہے۔ اس سورت میں چونکہ مومن آل فرعون کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کا عنوان رکھا گیا کہ وہ سورت جس میں مومن آل فرعون کا ذکر ہے۔ آل فرعون میں سے ایک شخص جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے کے بعد فرعون کے دربار میں تقریر کی اور ایمان کی طرف اپنی قوم کو بھی آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، اتارنا کتاب کا اللہ کی طرف سے، تنزیل یعنی اتارے جانا کتاب کا، اتارنا کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ جو بڑا غالب خوب جاننے والا ہے۔ غافر الذنب، بخشنے والا ہے گناہوں کا۔ اللہ کی صفات کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ وہ غالب بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، اپنی ان صفات کے ساتھ ساتھ وہ بخشنے والا بھی ہے، گناہوں کا، بندوں کے گناہوں کو بخشتا ہے۔ وقابل التوب، اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے، توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ شدید العقاب، ساتھ ساتھ یہ بات بھی سامنے رہے کہ وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ ذی الطول، بڑے فضل والا بھی ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ، نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیات میں، الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ فلا یغررک تقلبہم، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے ان کافروں کی چلت پھرت، فی البلاد، شہروں میں، جو کچھ چکا چوند ہے اور جو کچھ ان کے پاس مال و اسباب ہے، اس سے دھوکہ نہ ہو جائے مسلمانوں کو۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، والاحزاب، اور دیگر کئی گروہوں نے، من بعدہم، ان کے بعد یعنی قوم نوح کے بعد بھی ایسے لوگ تھے جو جھٹلانے والے تھے۔ وحمت کل امت برسولہم، اور ہر امت نے اپنے رسول کا ارادہ کیا، یعنی یہ ارادہ کیا کہ اس کا انکار کر دیں، لیاخذوہ، تاکہ اسے ہم پکڑ لیں۔ ایک ترجمہ یہ ہے، یعنی جب انہوں نے ارادہ انکار کیا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ انہوں نے یعنی قوم والوں نے جسارت کے ساتھ رسول کو پکڑنے کا ارادہ کیا، یعنی ان کو ایذا پہنچانے، نقصان پہنچانے کا۔ وجادلوا بالباطل، اور انہوں نے جھگڑا کیا جھوٹی دلیلوں کے ساتھ، جھوٹی باتوں کے ساتھ۔ لیدھزوا بہ الحق، تاکہ وہ اپنی باطل دلیلوں سے حق کو ڈگمگا دیں، پھسلا دیں۔ فاخذتہم، تو دیکھو ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ فکیف کان عقاب، پھر کیسی ہوئی ان کی سزا۔ وکذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح سے آپ کے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی، علی الذین کفروا، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، انہم اصحاب النار، کہ وہ دوزخ والے ہیں۔ الذین یحملون العرش، وہ لوگ جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایک اور اہم بات بتائی کہ وہ فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کا ایک کام یہ بھی ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے فرشتوں کو اہل ایمان کے حق میں مغفرت پر مامور کیا ہوا ہے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیری رحمت تو ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ وعلما، اور آپ کے علم نے بھی احاطہ کیا ہوا ہر چیز کا۔ فاغفر للذین تابوا، تو اے اللہ بخش دیجیے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، یعنی سفارش کرتے رہتے ہیں اللہ کے حضور ان بندوں کے حق میں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ واتبعوا سبیلک، اور انہوں نے پیروی کی اللہ تیرے راستے کی۔ وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں بچا لیجیے دوزخ کے عذاب سے۔ ربنا وادخلہم، اے ہمارے رب ان کو داخل کیجیے جنات عدن، ایسے باغات میں جو ہمیشگی کے ہیں، التی وعدتہم، جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم، اور ان کے ساتھ ان کے نیک آباء و اجداد کو بھی داخل کیجیے۔ یہ بھی ایک فضل ہوگا اللہ کا کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے نیک آباء و اجداد کو بھی ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ وازواجہم، اور ان کی بیویوں کو بھی داخل کیجیے، جو ان کی نیک بیویاں ہیں، جو جنتی ہوں اپنے کردار کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، جو آباء و اجداد جنتی ہوں اپنے کردار و اعمال کے اعتبار سے۔ وذریاتہم، اور ان کی اولاد کو بھی داخل کیجیے، یعنی جو اپنے اعمال کے اعتبار سے جنتی ہوں گے، اللہ ان کو جوڑ دے گا۔ دوسری جگہ فرمایا ان کو ایک ساتھ لے آئیں گے، الحقنا بہم ذریتہم فرمایا گیا۔ انک انت
अज़ीज़ुल हकीम, बेशक आप बड़े गालिब खूब हिकमत वाले हैं। वक़िहिमुस सय्यात, और इनको बचा लीजिए बुराइयों से। वमन तक़िस सय्यात यौमइज़िन, और जो कोई बचा लिया गया अपनी बुराइयों के अंजाम से उस दिन यानी रोज़ क़यामत, फ़क़द रहिमता, तो अल्लाह वही शख्स है जिस पर आपने रहम फरमाया। वज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, और यही है कामयाबी, बड़ी कामयाबी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बिलाशुबा वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, युनादौना, वो पुकारे जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, रोज़ क़यामत आवाज़ लगाई जाएगी। जब वो ये लोग कह रहे हैं, जहन्नमी लोग कहते होंगे कि हम तो बेजार हो गए अपने आप से, अपने आमाल से, आज जहन्नम की सज़ा से, तो कहा जाएगा लमक़्तुल्लाहि अकबरु मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम, अल्लाह की नाराज़गी बढ़कर थी तुम्हारी नाराज़गी से जो आज तुम्हारे बारे में है। यानी तुम अपने आप से नाराज़ हो, कहते हो क्या काश हम ऐसे अमाल न करते कि आज जहन्नम में जलाए जा रहे हैं। तो अल्लाह फरमाता है तुम्हारा ये गुस्सा कुछ नहीं है, जब तुम गुनाह कर रहे थे उस वक्त जो तुम्हारे बुरे अमाल पर मुझे गुस्सा आता था वो ज़्यादा बढ़कर था, इस काबिल था कि उस वक्त तुम सुधर जाते। अल्लाह के गुनाह को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गज़ब को भड़काने वाली चीज़ है इंसान के गुनाह। लमक़्तुल्लाहि, बेशक अल्लाह की नाराज़गी, उसका गज़ब, अकबर हो, ज़्यादा बड़ी चीज़ है, मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम, इंसान का अपने से नाराज़ होना इससे। या एक दूसरे माना ये किए गए कि तुम मखलूक़ात में से दूसरों की नाराज़गी को बहुत बड़ा समझ लेते थे और समझते अनफुसकुम यानी तुम्हारे जैसे जो लोग थे उनके नाराज़ हो, उनको खुश रखने के लिए तुम अल्लाह को नाराज़ करते थे और डरते थे कि कोई नाराज ना हो जाए, ये नाराज ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाए, खानदान वाले नाराज ना हो जाएं, दफ्तर वाले नाराज ना हो जाएं, और अल्लाह को नाराज करते रहते थे। जरा गौर तो करो, मखलूक की नाराजगी इसकी कोई हैसियत ही नहीं और अल्लाह की नाराजगी बहुत बड़ी चीज है। आज जो तुम जहन्नम पहुंचे इस वजह से पहुंचे कि तुमने मखलूक को राजी करने की कोशिश की थी और अल्लाह को नाराज किया था। हदीस में मफहूम आता है और यानी इस आयत के दो तर्जुमे मुमकिन है और दोनों में से दूसरा जो तर्जुमा था उसके मुआफ़िक़ मफहूम मौजूद है कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलील क़द्र सहाबी है, उन्होंने ख़त लिखा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जो उम्मुल मोमिनीन है। अपने ज़माने हुकूमत में हज़रत अमीर माविया ने वो ख़त लिखा और उनसे अर्ज़ की कि आपने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नसीहतें अख़ज़ की हैं उनमें से कोई नसीहत मुझे बताइए। तो हज़रत सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाबन जो ख़त लिख कर भेजा उसमें फ़रमाया कि लोगों में से कुछ, मैंने जो बातें अक्स की उनमें से एक बात यह है कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह को नाराज़ करते हैं लोगों को राज़ी कर कर, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह को राज़ी करते हैं लोगों की नाराज़गी की फ़िक्र नहीं करते। तो फरमाया कि जो लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को राज़ी करते हैं और लोगों की नाराज़गी की फ़िक्र नहीं करते, तो आखिरकार ये होता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन नाराज़ लोगों को भी राज़ी कर देता है आखिरकार, इसलिए कि दीन के लिए थी ना इनकी नाराज़गी, दीन के लिए हो, शर्त है। तो अल्लाह राज़ी कर देता है उन नाराज़ लोगों को भी, अल्लाह तो राज़ी हुआ अब इनको भी राज़ी करें। और दूसरे वो लोग जो अल्लाह को नाराज़ करते हैं और लोगों को राज़ी करते हैं उनके बारे में बड़ा सख्त फरमाया कि आदा हामिदुहु मिनन्नासि लहु ज़ाम्मा, लोगों में से जो इसकी तारीफ करता था कल तक वो भी इसकी मजम्मत करने वाला हो जाएगा। यानी अगर दीन को छोड़कर तुम लोगों को राजी करोगे तो वो लोग जिनको तुम राजी कर रहे थे वही तुम्हारी मजम्मत करने वाले हो जाएं। आदा हामिदुहु, तारीफ करने वाला लोगों में से, मिनन्नासि लहु ज़ाम्मा, इसकी मजम्मत करने वाला हो जाएगा। अल्लाह हम सबको बचाए और ये देखने की तौफीक अता फरमाए कि किसको राजी करना है और किसको नाराज करना है। लमक़्तुल्लाहि अकबर, बेशक अल्लाह की नाराज़गी बड़ी शदीद चीज़ है। मिन मक़्तिकुम अनफुसकुम, यानी तुम्हारा अनफुसकुम, तुम्हारा आपस में नाराज़ होना या तुम्हारा अपने आप से नाराज़ होना। इस्तदऊना इलल ईमानी, जब तुम्हें बुलाया जाता था ईमान की तरफ, इस्तदऊना इलल ईमानी, जब तुम बुलाए जाते थे ईमान की तरफ, फतकफुरून, फिर तुम इनकार करते थे उसका। क़ालू रब्बना अमत्तना स्नतैन, अब वो कहेंगे जहन्नमी लोग जहन्नम में पड़े हुए कहते होंगे, क़ालू रब्बना अमत्तना स्नतैन, ऐ अल्लाह तूने हम पर मौत तारी की 2 मरतबा, या हमें मुर्दा किया 2 मरतबा, व अहयैतना स्नतैन, और हमें जिंदा किया 2 मरतबा, फ़अतरफ़ना बिज़ुनूबिना, अब हमने अपने गुनाहों का एतराफ़ कर लिया है। फ़हल इला ख़ुरूज मिन सबील, तो अब क्या इस जहन्नम से निकलने का कोई रास्ता हो सकता है? यानी एक हयात और मिल जाए या एक मौत और मिल जाए कि हम यहाँ से निकाले जाए, हम पर मौत आ जाए और यह अज़ाब का सिलसिला ख़त्म हो जाए। क्या मुराद है इन 2 मौतों और 2 हयातों से? फरमाते हैं 2 मरतबा मुर्दा रहने से मुराद है तख्लीक मुकम्मल होने से पहले नुतफ़े की सूरत में इंसान मुर्दा था, फिर दूसरी मरतबा कब्र में मुर्दा हुआ वो, और उसके बाद ये हयात से मुराद एक जिंदगी है दुनिया की और एक हयात आखिरत की है। 2 मौतें और 2 हयात। ज़ालिकुम बिअन्नहु,
یہ عذاب اس لیے ہے کہ بلا شبہ اذا دعی اللہ وحدہ، جب پکارا جاتا تھا ایک اکیلے اللہ کو، کفرتم تو تم اس کا انکار کرتے تھے، وَإِن یشرک بہ، اور اگر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاتا تؤمنوا تو تم بات مان لیتے تھے، یعنی کفر کو مان لیا کرتے تھے۔ فالحکم للہ، تو اب حکم تو اللہ ہی کا ہے، العلی الکبیر، وہ جو نہایت بلند و بالا اور بہت بڑا ہے۔ هو الذی یریکم آیاتہ، وہی ہے جو دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، وَیُنَزِّلُ لَکُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور نازل کرتا ہے تم پر آسمان سے اپنا رزق۔ وما یذکر الا من ینیب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو رجوع کرنے والے ہیں۔ فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالص کرتے ہوئے اپنی بندگی کو اس کے لیے، ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ طریقہ کافروں کو جتنا ناپسند ہو۔ رفیع الدرجات، بہت بلند درجوں والا ہے، ذو العرش، عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ، اللہ اتارتا ہے وحی کو اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، لینذر، تاکہ وہ باخبر کرے، یوم الطلاق، ملاقات کے دن کی بابت۔ یوم ہم بارزون، جس روز یہ سب قبروں سے نکالے جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان میں سے کوئی بات بھی، یعنی ان کے سینوں کے راز بھی کچھ اللہ پر مخفی نہیں ہوں گے۔ لمن الملک اليوم، پوچھا جائے گا اس دن، آواز لگائی جائے گی آج کس کے لیے ہے بادشاہت، تو ہر کوئی کہے گا، اور یہ کہ کوئی نہیں کہے گا تو اللہ خود فرمائیں گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو بڑا طاقتور ہے اور چھایا ہوا ہے۔ الیوم تجزی کل نفس، جس دن بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو، بما کسبت، اس کی کمائی کا، لا ظلم اليوم، نہیں ظلم ہوگا اس دن کسی پر بھی۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وانذرہم یوم العازفۃ، ان کو آپ باخبر کریں اس دن کے بابت جو آنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جس دن کے دل قریب آ گئے ہوں گے گلوں کے، اور غم سے بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی دل منہ کو آتے ہوں گے، کاظمین غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم، اور ظالموں کے لیے اس دن کوئی دوست نہ ہوگا۔ دنیا میں جو گرم جوش دوست تھے، ہر موقع پر ساتھ رہنے والے تھے، وہ اس دن کام نہ آئیں گے۔ ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا کہ جس کی آپ سے آپ بات مان جاتی ہو، یعنی جس کو اللہ اختیار دیں گے وہ سفارش کرے گا، جس کو اللہ اختیار نہیں دیں گے تو اس کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ اس کی سفارش آپ سے آپ مان لی جائے۔ یعلم، وہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین، آنکھوں کی خیانت کو، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اور بے شک اللہ فیصلہ کرے گا انصاف کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ جن کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، لا یغزون بشیء، وہ تو کسی چیز کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہ رکھتے ہوں گے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا، فینظروا، کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین، کیا انجام ہوا لوگوں کا، کانوا من قبلہم، جو اس سے پہلے ہو گزرے، کانوا ہم اشد منہم قوۃ، وہ ان سے زیادہ تھے قوت میں، یعنی شدید تھے، زوراور تھے، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے زمین میں زیادہ نشانیاں چھوڑی تھی، زمین میں انہوں نے بہت سی اپنی علامات چھوڑے، عبرت کا سامان چھوڑا، کھنڈرات موجود ہیں۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو اللہ نے پکڑ لیا ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ وما کان لہم من اللہ من واق، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی اللہ کے بالمقابل بچانے والا۔ ذالک بانہم، یہ سب اس لیے تھا کہ بے شک کانت تاتیہم رسلہم، آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ۔ فکفروا، تو انہوں نے انکار کیا، فاخذہم اللہ، تو اللہ نے انہیں پکڑ لیا، انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ بڑا قوی ہے، شدید ہے سزا دینے والا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور تحقیق ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ کو واضح دلائل کے ساتھ اور واضح معجزات کے ساتھ، یعنی بآیاتنا اپنی کتاب کے ساتھ، اور اسی طرح سے واضح دلائل معجزات کے ساتھ، الی فرعون و حامان و قارون، فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف، جو اس قوم کے بڑے بڑے سرکردہ مجرم تھے ان کی طرف۔ فقالوا ساحر کذاب، ان سب نے کہا یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، اور جب آیا ان کے پاس وہ جو ہماری طرف سے تھا برحق یعنی عذاب، قالوا اقتلوا، تو کہنے لگے، یعنی بلکہ نہیں، جب ان کے پاس آ گیا ہماری طرف سے جو برحق تھا یعنی معجزہ، ظاہر ہوئے معجزات، قالوا، تو کہنے لگے قوم والے، اقتلوا، اسے قتل کر دو، اقتلوا ابناء الذین آمنوا، قتل کر دو ان لوگوں کے بچوں کو جو ایمان لائے ہیں، معہو، حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ یہ اصل میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ ایک تو تھا جو کہ بچوں کو قتل کیا جاتا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا موقع تھا، ایک کسی پیشگوئی کی بنیاد پر، اور ایک دوسری سزا تب دی بنی اسرائیل کو فرعون نے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے ایمان کی دعوت رکھی تو اس نے کہا وہ جو پچھلا عذاب ہم دیتے تھے وہی عذاب پھر ہم ان کو دیں گے۔ تو اب اس نے پھر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے جو ہیں ان کے لڑکوں
को कत्ल कर दो, वस्ताहियू निसाअहुम, और इनकी औरतों को जिंदा छोड़ो यानी इनकी बेटियों को, वमा कैदुल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, और नहीं है काफिरों की चाल मगर नाकाम होने वाली। वक़ाल फ़िरऔन ज़रूनी, और कहा फ़िरौन ने कि मुझे छोड़ो, यानी अब मुझे एक फैसला कर लेने दो, अक्तुल मूसा, कि मैं कत्ल कर डालूं मूसा को, वलयदु रब्बा, और इसे चाहिए कि ये पुकारे अपने रब को, इन्नी अखाफ़ु अन युबद्दिल दीनकुम, मुझे तो डर है इस बात का कि मूसा तुम्हारे दीन को बदल डालेगा, यानी जो बुत परस्ती का तरीका या सूरज परस्ती का तरीका तुम्हारे यहाँ राइज है, इस तरीके को तुम छोड़ बैठोगे इनकी दावत में आकर। औ अन युज़हिरा, या ये कि ये फैला देंगे फिल अर्ज़िल फसाद, या ज़मीन में ये फसाद फैला देंगे। वक़ाल मूसा, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी उस्तु बिरब्बी व रब्बिकुम, बेशक मैं तो पनाह पकड़ता हूँ अपने रब की और तुम्हारे रब की। मिन कुल्ली मुतकब्बिरिन ला युमिनु बियौमिल हिसाब, हर मुतकब्बिर के बिलमुकाबिल जो ईमान न रखता हो यौम हिसाब पर, रोज़ क़यामत पर। वक़ाल रजुलुन मिन आले फ़िरऔन, अब एक शख्स, रजुलुम मोमिन, वक़ाल रजुलुम मोमिनुम मिन आले फ़िरऔन, कहा एक मोमिन शख्स ने जो आले फ़िरऔन में से था। आल से मुराद यहाँ पे क्या है कि बज़ाहिर उसकी कौम में से था, यानी वो किप्तियों में से था नस्लन, मगर वो ईमान ले आए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, अपने ईमान को छुपाए हुए थे, जाहिर नहीं किया था अब तक ईमान को। और ये बात के नाम क्या था इनका और इनकी और तफसीलात क्या थी, ये चूँकि हमारे पास मौजूद नहीं है, इसको जिक्र नहीं किया मुफस्सिरीन ने, या इस बारे में रिवायात सही साबित नहीं है इसलिए जिक्र नहीं किया। और मुफस्सिरीन यही कहते हैं नाम इनका क्या है, मोमिन आले फ़िरऔन, वो एक साहिब जो मोमिन थे आले फ़िरऔन में से, यानी नस्लन। यक्तुमु ईमानहु, छुपाए हुए थे अपने ईमान को, कहने लगे आकर। अब यहाँ पर जब देखा उन्होंने कि मार्का इख्तिताम को है और साथ साथ ये कि इस मौके पर अब नुसरत की ज़रूरत है, मुझे चाहिए कि मैं अपने ईमान को जाहिर करूँ, तो उन्होंने जवामर्दी से काम लिया और आकर दरबार में फ़िरौन के सामने डट गए और कहने लगे, अतक़्तुलून रजुलन, कि तुम लोग कत्ल करना चाहते हो एक आदमी को, अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, इस पादाश में कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, एक अल्लाह की परस्तिश करने की बना पर उसको कत्ल करना चाहते हो, क्या इस तुम इसे जुर्म समझते हो? वक़द जाअकुम बिल बय्यिनात, जबकि वो तो आए हैं तुम्हारे पास रोशन दलाइल के साथ में, रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, वहीं यकु काज़िबन। अब यहाँ पर भी वही इस्तिदलाल का तर्ज है जिसको कहते हैं अला सबील तनज़्ज़ुल, यानी फर्ज कर लेते हैं चलो इस बात को। तो मोमिन आले फ़िरऔन ने भी फ़िरऔन को समझाने के लिए कहा कि देखो अगर फर्ज कर लो, इन यकु काज़िबन, अगर मूसा झूठे हैं फ़अलैहि कज़िबु, तो इनके झूठ का वबाल इन्हीं पर होगा, वहीं यकु सादिक़न, और अगर ये सच्चे हैं, जात है यानी मुल्क है, बादशाहत है तुम्हारे पास अर्ज़ मिस्र की, आज के दिन ज़ाहिरीन फ़िल अर्ज़, तुम गालिब हो ज़मीन में, या ये कि इस ज़मीन की ज़ाहिरी बादशाहत तुम्हारे पास है। फमन यंसुरुना, बताओ ज़रा कौन है हमारी मदद करने वाला, मिन बासिल्लाहि, अल्लाह के अज़ाब के बिलमुकाबिल, इन जाना, अगर वो आ जाए हमारे पास, यानी हम पर अजाब नाजिल हो तो तुम्हारा ये हुकूमत का पूरा निज़ाम, ये तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारी फ़ौज और तुम्हारा ये सारा सिस्टम, ये कुछ कायम नहीं आ सकता, ये बच नहीं सकता। काला फ़िरऔन, कहा फ़िरऔन ने, मा उरीकुम इल्ला मा अरा, अब इस तकरीर के जवाब में उसे वक्ती तौर पर पसपाई इख्तियार करनी पड़ी, कहने लगा मैं तो तुम्हें वो दिखाता हूँ जो मैं देखता हूँ, यानी जो मैं तुम अपने लिए अच्छा समझता हूँ वही तुम्हें बताता हूँ, मैं तो जो तदबीर की रोह से बेहतर देख रहा हूँ, इस मुल्क के मफाद में देख रहा हूँ, तुम्हें वो दिखा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। वमा अहदीकुम इल्ला सबील रशाद, और मैं तुम्हारी रहनुमाई नहीं करता मगर सीधे रास्ते की तरफ। फ़िरऔन ने अपनी कौम को इस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। वक़ाल लज़ी आमना, इस फ़िरौनी बातों के जवाब में भी वो मोमिन आले फ़िरौन खामोश न हुए, अपनी तकरीर उन्होंने जारी रखी और फिर कहने लगे। अल्लाह कहता है, कहा उस शख्स ने जो ईमान लाया था, या कौमी, ए मेरी कौम, इन्नी अखाफ़ु अलैकुम मिस्ल यौमिल अहज़ाब, मैं तुम पर डरता हूँ उस तरह के दिन के बारे में जिस तरह का पहले गिरोहों पर दिन आ चुका है, यानी अजाब के दिन जैसे गुजरे हैं वैसा कोई अजाब का दिन तुम पर भी ना आ जाए। मिस्ल दाब कौमिन, जैसे कि हाल हुआ था कौम नूहिन, मिस्ल दाब कौम नूहिन, जैसे कि हाल हुआ था कौम नूह का, व आदिन, और कौम आद का, व समूदा, और कौम समूद का, वल्लज़ीना मिन बादिहिम, और जैसे उनके बाद वाले मुनकिरीन का हाल हुआ। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल इबाद, और अल्लाह तो बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता। उन्होंने ऐसे काम किए थे कि उनको अजाब का मुस्तहिक ठहराया। व या कौमी, है मेरी कौम, इन्नी अखाफ़ु अलैकुम यौमत तनात, मैं तो तुम पर एक ऐसे दिन से अंदेशा रखता हूँ, डरता हूँ, जिसमें तुम एक दूसरे को पुकारते होगे, जिसमें तुम एक दूसरे के बारे में आवाज़ें लगाते होगे, यानी एक दूसरे को मदद के लिए पुकारोगे मगर फ़ायदा कुछ न होगा। यौम तुवल्लूना मुदबिरीन, जिस रोज़ के तुम भागोगे एक दूसरे से पीठ दिखाकर। मा लकुम मिनल्लाहि मिन आसिम, और अल्लाह के
کے عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہ ہوگا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ اور جسے اللہ چھوڑ دے گمراہ ہونے کو فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ تو کوئی اس کو ہدایت دینے والا نہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے چونکہ اس پورے زمین میں ایمان کی دولت آئی تھی اور واقعہ سورہ یوسف میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر کیا. مومن آل فرعون نے بتایا کہ تمہاری ابتدا بھی پوری رعایا وہاں کے مقامی باشندے مصر کے مسلمان ہو گئے تھے، پھر بعد میں ان لوگوں نے شرک کا طریقہ اختیار کیا، بت پرستی کا طریقہ یا سورج پرستی کا طریقہ اختیار کیا. تو انہوں نے واسطہ دیا اس کا اور یاد کروایا تاریخ کا اہم واقعہ کہ تمہارے بزرگوں میں بھی تو اچھے لوگ گزرے تھے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ تحقیق آئے تھے سرزمین مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام اس سے پہلے واضح دلائل کے ساتھ. پھر اس کے بعد یہ لوگ شرک پرستی پر آ گئے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اب آئے ہیں. تو بتایا کہ تم یوسف کو تو اچھا جانتے ہو، تو موسیٰ انہی کے تو پیروکار ہیں، انہی کے تو طریقے پر ہیں، اسی طرح سے آج بھیجے گئے ہیں. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ پھر تم شک میں ہی پڑ گئے اس کے بارے میں جو لے کر آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام تمہارے پاس. حَتَّى إِذَا هَلَكَ یہاں تک کہ وہ چلے گئے، فوت ہو گئے. وہ مصرف مرتاب ہر اس شخص کو جو حد سے بڑھنے والا ہو اور شک کرنے والا ہو. الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر سلطان نتاہم بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. کبر مقتا عند اللہ یہ بات تو اللہ کے لیے انتہائی بیزاری کا ناراضگی کا باعث ہے. وعند الذین آمنوا اور اسی طرح سے یہ بات اہل ایمان کو بھی بہت بری لگتی ہے. کذالک یطبع اللہ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے علی کل قلب متکبر جبار ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر ہو اور سرکش ہو. وقال فرعون اور کہا فرعون نے یا حامان ابن لی صرحا اے حامان میرے لیے بناؤ ایک بلند عمارت لعلی ابلغ الاسباب تاکہ میں پہنچوں راستوں پر. یعنی اب اس نے بات کو بدلنے کے لیے اور قوم کو اس نصیحت سے روکنے کے لیے جو مومن آل فرعون کر رہے تھے اور بہت مؤثر ہو گئی تھی اس سے ہٹانے کے لیے ایک ڈرامہ کیا، ایک نیا کرتب دکھایا. کہنے لگا ایک اونچی عمارت بناؤ، میں اس عمارت پر چڑھ جاؤں اور چڑھ کر آسمان کے راستوں میں جھانکوں اور جھانک کر دیکھوں کہ موسیٰ کے رب کہاں ہیں. لعلی ابلغ الاسباب تاکہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں، اسباب السماوات جو آسمان کے راستے ہیں. فاطلع الی الہ موسیٰ تاکہ میں مطلع ہو جاؤں، تاکہ میں جھانک سکوں موسیٰ کے الہ تک، موسیٰ کے معبود کہاں ہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا یقیناً میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ اسی طرح سے مزین کر دیا گیا لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ فرعون کے لیے اس کا برا عمل. وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ اور وہ روک دیا گیا سیدھے راستے سے. یہ تو حماقت کی پٹی تھی جو شیطان نے اس کو پڑھائی تھی. وما قید فرعون الا فی تباب اور نہیں ہے فرعون کی چالیں مگر وہ جانے والی ہیں رائے گاہ، بیکار ہونے والی ہیں. وقال الذی آمنا پھر نصیحت کی انہی صاحب نے جو ایمان لائے تھے مومن آل فرعون. یا قوم اتبعون اے میری قوم میری اتباع کرو، میری بات مانو. اہدیکم سبیل الرشاد میں تمہیں راستہ بتلاتا ہوں بھلائی کا راستہ. فرعون کہتا تھا میں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، تو یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا لمبردار ہوں اور میں تمہیں بلاتا ہوں سیدھے راستے کی طرف. فرعون کے بالمقابل یا قوم اے میری قوم انما ھذہ الحیات الدنیا یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کیا ہے، متاعن تھوڑا سا فائدہ ہے، برتنے کی چیز ہے. وان الاخرۃ ہی دار القرار اور جو آخرت ہے وہی ٹھہرنے کا گھر ہے، بہترین جگہ ہے. من عمل سیئۃ جو کوئی برائی کرے گا فلا یجزا الا مثلھا تو اسے بدلہ نہ دیا جائے گا مگر اسی برائی کے برابر. ومن عمل صالحا اور جو کوئی نیک عمل کرے گا من ذکر او انثی چاہے مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے وہو مومن ہاں شرط یہ ہے کہ حالت ایمان میں اچھائی کرے. فاولئک یدخلون الجنہ تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا. یرزقون فیہا وہ وہاں رزق دیے جائیں گے بغیر حساب بغیر حساب کتاب کے. ویا قومی اور اے میری قوم مالی ادعوکم الی النجات اس میں میرا کیا فائدہ ہے. مالی یعنی میرے لیے کیا ہے، مجھے کیا دنیا کا اس میں فائدہ ملتا ہے. میں تو تمہیں بلاتا ہوں خالصتاً آخرت کے لیے. ادعوکم الی النجات میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، تمہارے فائدے کی طرف. وتدعوننی اور تم مجھے بلاتے ہو الی النار آگ کی طرف. تدعوننی اور تم مجھے بلاتے ہو لیکفر باللہ اس بات کی طرف کہ میں اللہ کے ساتھ اللہ کا انکار کروں. واشرک بہ اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں. ما لیس لی بہ علم جس بارے میں میرے پاس کوئی علم نہیں. وانا ادعوکم اور میں تمہیں بلاتا ہوں الی العزیز الغفار ایک ایسی ذات کی طرف جو خوب بخشنے غالب بھی ہے اور بخشنے والی بھی ہے. لا جرما
कोई शक नहीं इसी तरह वाक़या पेश आया था, अन्नमा तदूननी, कि बेशक जिस तरफ तुम मुझे बुलाते हो, तदूननी इलैहि, जिस तरफ तुम मुझे दावत देते हो, लैसा लहू दावतुन, तो वो बात तो कोई काबिल कबूल बात नहीं है, फिर दुनिया वला फिल आखिरा, न दुनिया की ज़िंदगी में न आखिरत की ज़िंदगी में, यानी शिरक के लिए कोई कबूलियत नहीं है। शिरक को न दुनिया में कबूल किया जाएगा और न आखिरत में इसका कोई अच्छा नतीजा है। वअन्ना मरदना, और बेशक ये बात कि हमारा लौटना है इलल्लाह, अल्लाह ही की तरफ, वअन्नल मुस्रिफीना, और बेशक हद से बढ़ने वाले, हुम अस्हाबुन नार, वही दोज़खी लोग हैं। फसतज़कुरून मा अक़ूलु लकुम, अब जब कौम ने उनके साथ बुराई की और उनको बुरे इरादे से छुआ तो उस मौके पर उन्होंने आखिरी बात ये की और कह दिया कि मैंने तो तुम्हारी नसीहत का अदा किया, फसतज़कुरून, अनकरीब तुम याद करोगे, मा अक़ूलु लकुम, उन बातों को जो मैं तुमसे कहता था, यानी आखिरत में तुम्हें याद आएंगी ये बातें। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह, और मैं अपना मामला तो हवाले करता हूँ अल्लाह के। इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह बंदों के हाल से खूब वाकिफ है। फ़वक़ाहुल्लाहु सय्याति मा मकरू, तो अल्लाह ने बचा लिया उनको, यानी मोमिन आले फ़िरौन को, उन बुराइयों से जो वो किया करते थे, यानी कौम वाले जो चाल चलते थे और जो कुछ वो नुकसान कर रहे थे, यानी ये भी ईमान लाने वालों के साथ बचाए गए। वहाक़ बिआले फ़िरौन, और घेर लिया आले फ़िरौन को सूअल अज़ाब, उस बुरे अज़ाब ने, यानी गर्क किए गए बकिया। मालूम हुआ कि नस्ली तौर पर कोई कहीं से भी हो, मगर उसको अगर अकीदा सही सामने आ जाए उसे कबूल करना चाहिए, और जब वो अकीदे को सही कबूल कर लेगा तो आखिरत में फैसला नस्ल की बुनियाद पर नहीं होगा, अकीदे की बुनियाद पर होगा, उसके अकायद और ईमान की बुनियाद पर होगा। फरमाया गया कि आले फ़िरौन को बुरे अजाब ने घेर लिया, यानी उनको गर्क कर दिया गया। अन्नार, वो अजाब क्या है, दुनिया में जो गर्क किया गया वो तो थोड़ा था, अब उनके लिए आखिरत में आग का अजाब है। योरज़ूना अलैहा, उस पर वो पेश किए जाते हैं, गुदुव्वन व अशिया, सुबह व शाम, यानी दुनिया में भी, यानी इस मतलब क्या है कि दुनिया से चले गए गर्क कर दिए गए, एक अजाब था। दूसरा अजाब उनको कब्र में दिया जा रहा है, और कब्र के अजाब की सूरत यह है कि अभी मुकम्मल जहन्नम में दाखिल तो नहीं किए गए, मगर जहन्नम पर पेश किए जाते हैं। आले फ़िरौन को कब्रों में भी अजाब हो रहा है, जहां पर भी है। कब्र से मुराद क्या है कि इंसान की बरज़खी जिंदगी, चाहे वो पानी में गर्क हुआ हो, चाहे आसमान में फना हो गया हो, चाहे मिट्टी में रल मिल गया होगा, मगर उसके बावजूद वो जिंदगी जो बरज़खी है उसे कब्र की जिंदगी कहते हैं, जिसमें या तो अजाब होता है या अल्लाह की तरफ से नेमतें होती हैं अहले ईमान के लिए। तो कहा योरज़ूना अलैहा, वो आले फ़िरौन पेश किए जाते हैं आग पर, गुदुव्वन व अशिया, सुबह शाम। व यौम तक़ूमुस्साअ, और जिस रोज क़यामत खड़ी हो जाएगी यानी कायम हो जाएगी, कहा जाएगा अदखिलू आला फ़िरौन, दाखिल कर दो आले फ़िरौन को अशद अल अज़ाब, सख्त तरीन अज़ाब में, यानी फिर वो बाकायदा जहन्नम में भी वारिद कर दिए जाएंगे, दाखिल कर दिए जाएंगे। वइज़ यतहाजुना फिन्नार, और जब वो बाहम झगड़ रहे होंगे आग में, फ़यक़ूलु ज़ुअफ़ा, तो कहेंगे कमज़ोर किस्म के लोग, लिल्लज़ीना इस्तकबरू, उनसे जो सरदार लोग थे, तकब्बुर करने वाले थे, उनसे कहेंगे इन्ना कुन्ना लकुम तबाह, दुनिया में हम तुम्हारे ताबे शुमार होते थे, फ़हल अंतुम मुग़नून अन्ना नसीबम मिनन नार, कि यहाँ तुम हमारे लिए इतना कर सकते हो कि कुछ हिस्सा आग का हमसे कम कर दो, यानी जो सज़ा है आग की इसमें कुछ हमारे लिए तख़फ़ीफ़ करवा दो। क़ाल लज़ीना इस्तकबरू, तो कहेंगे वो लोग जिन्होंने तकब्बुर किया, इन्ना कुल्लुन फ़ीहा, हम सब के सब इस आग में हैं, इन्नल्लाह क़द हकम बैनल इबाद, बेशक अल्लाह ने फैसला कर दिया है बंदों के माबैन। वक़ाल लज़ीना फ़िन्नार, और कहेंगे वो लोग जो आग में होंगे, लिखज़नत जहन्नम, जहन्नम के दरोगों से वहां जितने भी होंगे उनसे कहेंगे उदू रब्बकुम, कि तुम पुकारो अपने रब को, यानी दरोगा से कहेंगे कि तुम हमारी सिफारिश करो अपने रब से, युखफ़िफ़ अन्ना, कि वो हल्का कर दे हम पर से, यौमम मिनल अज़ाब, एक दिन अजाब में से, एक लम्हा भी इतना सख्त होगा, कहेंगे कम से कम एक दिन की छुट्टी मिल जाए, कमी हो जाए अजाब में से। कालू, वो दरबान वो दरोगे कहेंगे अवलम तकू तातीकुम रसूलुकुम, क्या ऐसा नहीं था कि आते थे तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल बिल बय्यनात, वाज़े दलाइल के साथ। कालू बला, तो वो कहेंगे जहन्नमी कि हाँ ऐसा तो हुआ था। कालू फदू, तो कहेंगे कि अब तुम ही पुकारो, खुद ही दुआ कर लो। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल, और काफिरों का पुकारना किसी काम का नहीं है, यानी कबूल ना होगा, राएगा जाएगा। इन्ना लनंसुरो, बेशक हम मदद कर रहते हैं, हम मदद करते हैं, रसूलना, अपने रसूलों की, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों की जो ईमान लाए, फिल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, व यौम यक़ूमुल अशहाद, और उस दिन भी जिस दिन के गवाह खड़े होंगे, यानी रोज़ क़यामत जब गवाहियाँ देने वाले गवाहियाँ दे रहे होंगे। यौम ला यनफ़उ ज़ालिमीना,
माज़रतुहुम, जिस दिन फ़ायदा न देगा ज़ालिमों को उनका माजरत करना, वलहुमुल्लाना, और उनके लिए लानत होगी, वलहुम सूउद्दार, और उनके लिए बुरा घर होगा, वलक़द आतैना मूसल हुदा, और तहक़ीक़ हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत दी थी, वउरसना यानी अल हुदा दी थी, हिदायत का सामान दिया था, वउरसना और हमने उन्हें वारिस बनाया, वउरसना बनी इसराइल अल किताब, और हमने वारिस बनाया बनी इसराइल को किताब का, हुदा व ज़िक्रा लिउलिल अलबाब, उसमें हिदायत भी थी और नसीहत भी थी अक्लमंदों के लिए। फस्बिर, तो आप सब्र कीजिए, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, बेशक अल्लाह का वादा बरहक है, वस्तग़फिर लिज़म्बिक, और अपने खिलाफ औला के लिए इस्तग़फ़ार चाहिए, बख्शिश चाहिए। मुराद क्या, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से तो गुनाह सरज़द नहीं हो सकता, उनके लिए लफ्ज़ ज़ंब इस्तेमाल हो तो इसका मतलब है खिलाफ औला, और उससे मुराद क्या है, वो जो इज्तिहादी अख़्तात हैं, जैसे इससे पहले भी हम पढ़ा है, सूरह स्वाद में भी जिक्र आया कि किसी मौके पर इज्तिहादी तौर पर कोई गलती हो जाए अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको पर भी मुतनब्बे फरमा देते हैं, उसको भी सही कर देते हैं, ताकि, और माफ़ भी फरमा देते हैं, ताकि बाद वालों के लिए उसवा मुकम्मल हो जाए। और साथ साथ ये कि जो उनको मग़फ़िरत का कहा जाता है, ये उनकी बुलंदी दर्जात के लिए है। और खिलाफ औला से मुराद क्या है कि जायज़ उमूर में से किसी आला दर्जे के बजाय कम दर्जे वाली चीज को इख्तियार कर लिया, तो कहा कि आपकी शान तो ये थी कि आप आला दर्जे की चीज को इख्तियार करते, तो आप इस पर अल्लाह से मग़फ़िरत चाहिए। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, और तस्बीह बयान कीजिए अपने रब की हमद के साथ, बिलअशी वल इब्कार, सुबह शाम के वक्त भी और सुबह के वक्त भी। इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि, वो लोग जो झगड़ा करते हैं अल्लाह की आयात में, बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम, बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो, इन फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुन, नहीं है उनके सीनों में मगर एक खप्त, बड़ाई का खप्त है उनके दिलों में, अपने आप के अपने किब्र में मुब्तला है, तकब्बुर में मुब्तला है, मा हुम बिबालिग़ीही, ऐसे तकब्बुर में जिसके साथ वो पहुंचने वाले नहीं है, यानी ये कि इसके साथ वो मंजिल मुराद तक नहीं पहुंच सकते। किब्र ऐसी चीज है कि रायगा कर देगी तुम्हें। दूसरी बात ये कि मा हुम बिबालिग़ी, जिस चीज को इन्होंने, जिस मर्तबे और मकाम को इन्होंने अपने लिए समझ लिया है, वहां तक ये पहुंचने वाले नहीं हैं, वैसे ये है नहीं, जितने बड़ा अपने आप को समझते हैं उतने बड़े ये है नहीं। फस्तईज़ बिल्लाह, तो आप पनाह तलब कीजिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, इन्नहू हुवस समीउल बसीर, बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। लखल्क़ुस समावाति वल अर्ज़, बेशक पैदा करना आसमानों और जमीन का, अकबरो, ज्यादा बड़ी चीज है, मिन खल्क़िन नास, मखलूक के पैदा करने से, यानी इंसानों के पैदा करने से। ये तो छोटी सी मखलूक है, अल्लाह ने इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी ज़मीन बनाई है। वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यअलमून, मगर लोगों की अक्सरियत जानती नहीं है। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, और नहीं बराबर हो सकते अंधा और देखने वाला। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, ला वलल मुसी, और बराबर नहीं हो सकते इनके वो जो कि बुराई करने वाले हैं। गुनाहगार और नेक लोग बराबर नहीं हो सकते। कलीलम मा ततज़क्करून, बहुत ही थोड़ी है जो नसीहत तुम हासिल करते हो। इन्न साअत लातियतुन, बेशक क़यामत तो आकर रहने वाली है, ला रैब फ़ी, उसके आने में कोई शक नहीं। वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला युमिनून, मगर लोगों की अक्सरियत ईमान नहीं लाती। वक़ाल रब्बुकुम उदूनी, और कहा आपके रब ने कि पुकारो मुझे, यानी हुक्म दिया है कि मुझसे मुतालबा किया करो, मुझसे दुआएं किया करो, मुझे पुकारा करो, मेरे नाम की तस्बीह पढ़ा करो, हुक्म दिया है इस बात का। और फरमाया कि अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारे पुकारने पर, यानी तुम्हारे दुआ करने पर, तुम्हारी पुकार को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, बेशक वो लोग जो हमारी बंदगी से तकब्बुर करते हैं, ना पुकारने पर अल्लाह नाराज होते हैं, और इसे तकब्बुर करार दिया, और बंदगी करार दिया पुकारने को, यानी दुआ करने को, कि अगर वो दुआ ना करें तो ये तकब्बुर है, और तकब्बुर करने वाले बेशक सयदखुलूना, अनकरीब वो दाखिल किए जाएंगे, जहन्नम दाखिरीन, जहन्नम में जलील होकर। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला, अल्लाह ही है वो ज़ात जिसने बना दिया तुम्हारे लिए रात को, लितस्कुनू, कि तस्कुनू फी, ताकि तुम उसमें आराम करो, वन्नहारा मुबसिरा, और दिन को ऐसा बनाया कि वो उसमें देखना मुमकिन होता है, चीज़ों को तुम देखते हो, रोशन बना दिया। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी, बेशक अल्लाह बड़े फजल वाला है लोगों पर। वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यशकुरून, मगर लोग शुक्रगुजार नहीं होते अक्सर। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यह तुम्हारा रब, खालिकु कुल्लि शै, तख्लीक करने वाला, पैदा करने वाला हर चीज का, ला इलाहा इल्ला हुआ, कोई माबूद नहीं सिवाय उसके, फअन्ना तुफ़कुन, तो तुम कहाँ से फेरे जाते हो। कज़ालिका युफ़कुल लज़ीना, इसी तरह से फेरे जाते थे वो लोग, कानू बि आयातिल्लाहि यजहदून, जो हमारी आयात का, अल्लाह की आयात का इनकार करते थे। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ क़रारा, वही अल्लाह जिसने बना दिया तुम्हारे लिए जमीन को करारगाह, वस्समा बिनाअ, और बना दिया आसमान को छत, वसव्वरकुम, और तुम्हारी सूरतगरी की, तुम्हें सूरतें दी, तरह तरह की तुम्हारी शक्लें बनाई।
फ़अहसन सुअरकुम, और कितनी अच्छी बनाई तुम्हारी सूरतें, वरज़क़कुम मिनत तय्यबात, और तुम्हें रिज़्क़ दिया पाकीज़ा चीज़ों में से, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, यह है तुम्हारा रब अल्लाह सुब्हानहु व तआला। फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, सो बहुत बाबरकत है अल्लाह रब्बुल आलमीन। हुवल हय्यु, वो जिंदा है, ला इलाहा इल्ला हुआ, कोई माबूद नहीं उसके अलावा, फ़दऊहु, उसी को पुकारो, मुखलिसीन लहुद्दीन, उसके लिए अपनी इबादत को खालिस करते हुए, बंदगी को खालिस करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। कुल कह दीजिए, इन्नी नुहीतु, बेशक मैं तो रोक दिया गया हूँ इस बात से, अन आबुदल्लज़ीना, कि मैं इबादत करूँ उनकी, तदून मिन दूनिल्लाह, जिनकी तुम इबादत करते हो, जिनको तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, लम्मा जाअनी अलबय्यिनातु, जब आ गई मेरे पास वाज़ेह दलीलें, मेरे रब्बी, मेरे रब की तरफ से, व उमिरतु, और मुझे हुक्म दिया गया इस बात का, अन उस्लिमा, कि मैं फरमाबरदार रहूं, लिरब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन, वही है ज़ात जिससे तुम्हें पैदा किया मिट्टी से, सुम्मा मिन नुतफ़तिन, फिर नुतफ़े से, सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर जमे हुए खून से, सुम्मा युख़रिजुकुम तिफ़ला, फिर वो तुम्हें निकालता है बच्चा बनाकर, यानी एक विलादत की सूरत में बाहर आ जाता है एक बच्चा। सुम्मा लितबलुगु, ताकि फिर तुम पहुंच जाओ, यानी फिर तुम्हें मोहलत देता है कि तुम पहुंच जाओ, अशुद्धकुम, अपनी पूरी कुव्वत को यानी जवानी को, सुम्मा लितकूनु, फिर तुम्हें मोहलत देता है ताकि तुम हो जाओ शुयूखा, उम्र दराज करता है कि तुम हो जाओ बूढ़े, यानी बुढ़ापे को पहुंच जाओ। व मिनकुम मन युतवफ़ा, फिर तुम में से बाज़ वो हैं जो बुढ़ापे तक पहुंचकर वफात से दो चार किए जाते हैं। मिनकुम मन युतवफ़ा मिन क़ब्ल, बाज़ वो हैं जो उससे पहले ही वफात से दो चार कर लिए जाते हैं, यानी इन मुख्तलिफ मराहिल के दरमियान में ही वो फौत कर दिए जाते हैं। और इसमें माज़ूफ़ है कि मिनकुम मन युतरक, बाज़ वो हैं जो छोड़ दिए जाते हैं कि बुढ़ापे तक पहुंच जाएं और अपनी मुद्दत पूरी कर लें, लितबलुगू, ताकि वो पहुंच जाएं, ताकि तुम पहुंच जाओ अजलम मुसम्मा, अपनी मुअय्यन मुद्दत को। वलअल्लकुम ताक़िलून, और इस पर तुम गौर करो, ताकि तुम इस पर गौर करो, यानी ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने किसी को ये नहीं बताया कि उसकी मौत कब होने वाली है, ताकि वो अमल करता रहे। बाज़ वो हैं बचपन में वफात से दो चार कर दिए जाते हैं, बाज़ जवानी को पहुंचते हैं, बाज़ नहीं पहुंचते, और बाज़ वो हैं जो बुढ़ापे को पहुंचते हैं, और बाज़ उससे पहले ही दुनिया से चले जाते हैं। तो हर हाल में इंसान आखिरत की तैयारी करने वाला हो, ये ना समझे कि अभी बहुत उम्र पड़ी हुई है। हुवल्लज़ी युही व युमीत, वही अल्लाह जो जिंदा करता है और मारता है। फ़इज़ा क़ज़ा अमरन, जब वो फैसला कर देता है किसी काम का, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो उसके लिए बस कहना होता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। अलम तरा इलल लज़ीना, कि नहीं देखा आपने लोगों की तरफ, युजादिलून फ़ी आयातिल्लाह, जो झगड़ते हैं अल्लाह की आयात में, अन्ना युसरफून, वो कहाँ से फेरे जाते हैं, अल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयात बिल किताबी, और वो लोग जिन्होंने झुटलाया किताब को यानी कुरान हकीम को, वबिमा अरसलना बिही, और उस वही को जिसके साथ हमने भेजा, रुसुलना, अपने रसूलों को, फसौफ यालमून, तो वन करीब जान लेंगे, इज़ अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम, जब तौक होंगे उनके गर्दनों में, वस्सलासिल, और जंजीरों में होंगे ये, युसहबून, घसीटे जाने वाले, यानी जंजीरों में जकड़ कर इन्हें घसीटा जाएगा। फिल हमीम, खौलते हुए पानी पर लाए जाएंगे, यानी प्यास बुझाने के लिए, मगर वहां उससे प्यास क्या बुझेगी, वो तो अजाब है। सुम्मा फिन नारी युसजरून, फिर जलाए जाएंगे वो आग में, यानी जब पानी मांगेंगे तो खौलते हुए पानी पर लाए जाएंगे, फिर खींच कर इन्हें घसीटते हुए जंजीरों में ले जाया जाएगा वापस आग में जलाने के लिए। सुम्मा क़ील लहुम, फिर उनसे कहा जाएगा, ऐनमा कुंतुम तुशरिकून, कहाँ है वो जिनको तुम शरीक ठहराते थे, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, क़ालू ज़ल्लू अन्ना, वो कहेंगे वो गुम हो गए हमसे, बल लम नकुन नदू मिन क़ब्लु शैया, बल्कि कहेंगे कि हम जिन्हें पुकारते थे इससे पहले वो तो कुछ भी न थे, उनकी तो कोई हकीकत ही नहीं थी, वो लाशय थे। कज़ालिका युज़िल्लुल्लाहुल काफ़िरीन, इसी तरह अल्लाह गुमराह करता है काफिरों को। ज़ालिकुम, यह है तुम्हारा अज़ाब, बिमा कुंतुम तफ़रहून फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़्क़ि, बसबब इसके कि तुम ज़मीन में बड़े खुश होते थे नाहक, व बिमा कुंतुम तमरहून, और इस सबब से कि तुम ज़मीन में नाहक इतराया करते थे। उदखुलू, कहा जाएगा दाखिल हो जाओ तुम, अब्वाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाजों में, खालिदीन फीहा, यहाँ रहोगे हमेशा, फबीस मस्वल मुतकब्बिरीन, बहुत बुरा ठिकाना है तकब्बुर करने वालों का। फस्बिर, तो आप सब्र कीजिए, इन्न वादल्लाहि हक़्क़ुन, बिलाशुबा अल्लाह का वादा पर हक है। फ़इम्मा नुरियन्नका बाज़ल्लज़ी नईदुहुम, अगर हम आपको दिखलाएं बाज वो जिसका इनसे वादा किया जाता है, यानी आपके जीते जी इनके ऊपर अजाब आ जाए, तो ये भी इसके मुस्तहिक हो चुके हैं। माज़ूफ है कि ये तो इसके लिए पहले से हकदार हैं काफिर के इन पर अजाब आ
जाए। या दूसरी सूरत ये है औ नतवफ़यन्नका, ये कि हम आपको वफात से दो चार करें, फ़इलैना युरजाऊन, तो फिर भी हमारी तरफ ये लौटाए जाएंगे। तो आखिरत का अज़ाब तो इनके लिए, काफिरों के लिए है ही। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, और तहक़ीक़ हमने भेजे कई रसूल आपसे पहले, मिनहुम मन क़ससना अलैक, उन रसूलों में से बाज़ वो हैं जिनके वाक़यात हमने आपसे बयान कर दिए, व मिनहुम मन लम नक़सुस अलैक, और बाज़ वो हैं कि जिनका तज़किरा हाल हमने आपसे बयान नहीं किया। वमा कान लिरसूलिन, और नहीं है इख्तियार किसी रसूल के पास, अय्यातिया बिआयतिन, कि वो ले आए कोई मौजज़ा अपनी कुव्वत से, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म से आया करता है। अल्लाह चाहते हैं तो अता फरमाते हैं मौजज़ात। फ़ैज़ा जा अमरुल्लाहि, और जब आ गया अल्लाह का हुक्म, क़ुज़िया बिल हक़, तो फैसला कर दिया गया हक़ के साथ। व ख़सिरा हुनालिकल मुब्तिलून, तो वहाँ खसारा उठाने वाले हुए अहले बातिल। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुम, वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए बनाया, अल-अनाम, चौपायों को, लितरकबू मिनहा, कि इनमें से बास पर तुम सवारी करो, जैसे घोड़े पर सवारी करते हो, खच्चर पे करते हो। और मिनहा ताकुलून, और इनमें से बाज ऐसे चौपाए बनाए जिनमें से तुम खाते हो, जैसे बकरी है और इसी तरह गाय है। वलकुम फीहा मनाफिअ, और इनमें, इन चौपायों में तुम्हारे लिए और फायदे भी हैं। वलितबलुगू अलैहा हाजतन फी सुदूरिकुम, और तुम इन पर सवार होकर वहां तक पहुंच जाते हो जहां तक तुम्हारी हाजत होती है जाने की, यानी तुम्हारे सीनों में ख्याल होता है, यानी तुम्हारे दिल में ख्याल होता है जिस सफर का, उस सफर को कता करते हो, पूरा करते हो इन जानवरों पर सवार होकर। व अलैहा, इन जानवरों पर, व अलल फुल्की, और कश्तियों पर, तुहमलून, तुम सवार किए जाते हो। व युरीकुम आयातिही, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हें दिखाता है अपनी कुदरत की निशानियां। फ़अय्या आयातिल्लाहि, फिर कौन सी निशानियां हैं अल्लाह की कुदरत की, तो उनके रोन के तुम उनका इनकार करोगे। अफलम यसीरु फिल अर्ज़, तो फिर क्या इन्होंने नहीं सैर की जमीन की, फयंजुरू, के देखते, कई फ़काना आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, के क्या अंजाम हुआ लोगों का जो इनसे पहले हो गुजरे। कानू अक्सर मिनहुम, जो ज्यादा थे इनसे तादाद में, व अशद्द क़ुव्वतन, और ज्यादा थे कुव्वत में, व आसारन फिल अर्ज़ि, और जमीन में निशानियां छोड़ने के एतबार से भी ज्यादा थे। उनकी तामीरात भी थी, उनके और बहुत से आसार जमीन पर हैं। फमा अग़ना अन्हुम, ये सारे, ये सब कुछ, ये ताकतें उनके कुछ काम ना आई। मा कानू यक्सिबून, उनके बुरे अमाल के बिलमुकाबिल, यानी बुरे अमाल की सजा आकर रही। फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम, और जब आए उनके पास उनके रसूल बिलबय्यिनात, वाज़े दलाइल के साथ, फ़रिक़ू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, तो वो खुश हुए उस पर जो इल्म उनके पास था, यानी नाकिस इल्म और गैर नाफ़े इल्म, जो उनकी जहालत थी, जैसे वो इल्म समझे हुए थे उसी पर वो इतराने लगे। वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, तो उनको आप पकड़ा उस अज़ाब ने जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। फलम्मा राऊ बासना, और जब देखा उन्होंने हमारे अजाब को, कालू, यानी उसके आसार को, कालू, तो कह उठे, आमन्ना बिल्लाहि वहदा, कि हम ईमान ले आए एक अकेले अल्लाह पर। व कफरना, और हमने इनकार किया, बिमा कुन्ना बिही मुशरिकीन, उन तमाम शरीकों का जिनको हम ठहराया करते थे शरीक। फलम यको यनफ़ाउहुम ईमानुहुम, फरमाया कि अब तो इनके लिए इनका ईमान नफ़े वाला ना हुआ, इस मौके पर ईमान लाना इनको फ़ायदा न देगा। लम्मा राउ बासना, जब उन्होंने देख लिया हमारे अजाब के आसार को। सुन्नत अल्लाही, ये अल्लाह का तरीका है, अल्लती क़द खलत फ़ी इबादिही, जो इससे पहले भी दस्तूर जारी रहा अल्लाह का उसके बंदों की बाबत। व खसिरा हुनालिकल काफिरून, और खसारा उठाया वहाँ उस मौके पर काफिरों ने। 4 रकात अदा करेंगे इंशाअल्लाह। क़ुल क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व